فضائی آلودگی کی بڑھتی ہوئی فضائی آلودگی شہریوں کے لیے خطرہ بن گئی۔ ملتان سمیت جنوبی پنجاب کے بیشتر شہروں میں اسموگ کے اثرات۔ بہاولپور کی فضا جنوبی پنجاب میں سب سے زیادہ آلودہ قرار دے دی گئی۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کی بات کی جائے تو 416 پوائنٹس ریکارڈ کی گئی۔ ملتان کی فضا میں آلودگی کی شرح 263 پوائنٹس ریکارڈ۔ شہری مختلف امراض کا شکار ہونے لگے۔ بڑھتی ہوئی فضائی آلودگی شہریوں کے لیے خطرہ بن گئی۔ جنوبی پنجاب کے بیشتر شہروں میں اسموگ کے اثرات۔ بہاولپور کی فضا جنوبی پنجاب میں سب سے آلودہ، ایئر کوالٹی انڈیکس 416 پوائنٹس ریکارڈ۔ ملتان کی فضا میں آلودگی کی شرح 263 پوائنٹس ریکارڈ کی گئی، جبکہ آلودگی میں رحیم یار خان 223، سرگودا 163 پوائنٹس ریکارڈ۔ شہری مختلف امراض کا شکار ہونے لگے۔ انڈسٹریل یونٹس اور بھٹوں کا دھواں فضائی آلودگی کی بڑی وجہ۔ دیہی علاقوں میں فصلوں کے باقیہ جلانے کا سلسلہ بھی نہ رکا۔ طبی ماہرین کی طرف سے ماسک کے استعمال کا مشورہ۔ ماسک کے استعمال کا مشورہ دے دیا گیا ہے۔ آلودگی میں رحیم یار خان 223، سرگودا 163 پوائنٹس ریکارڈ کیا گیا۔ شہری مختلف امراض کا شکار ہونے لگے۔ میاں والی میں فضائی آلودگی نے ڈیرے جما لیے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 154 پوائنٹس ریکارڈ۔ میاں والی کی فضا شہریوں کے لیے مضر صحت قرار۔ طبی ماہرین کی احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی ہدایت۔ میاں والی کی فضا شہریوں کے لیے مضر صحت قرار دے دی گئی۔ کھلے عام ورزش سے اجتناب کیا جائے، طبی ماہرین کی جانب سے ایسا کہا گیا۔ مزید کہنا تھا کہ کمروں کی کھڑکیوں اور دروازوں کو بند رکھا جائے، ماسک کا استعمال یقینی بنایا جائے۔ میاں والی کی فضا شہریوں کے لیے مضر صحت قرار دے دی گئی۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 154 پوائنٹس ریکارڈ کیا گیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں میاں والی میں فضائی آلودگی نے ڈیرے جما لی۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 154 پوائنٹس ریکارڈ کیا گیا۔ میاں والی کی فضا شہریوں کے لیے مضر صحت قرار۔ طبی ماہرین کی احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی ہدایت۔ کھلے عام ورزش سے اجتناب کیا جائے۔ طبی ماہرین کا کہنا تھا کہ کمروں کی کھڑکیوں اور دروازوں کو بھی بند رکھا جائے۔ بات کریں گے میاں والی میں ترقیاتی کاموں کو بریک لگی۔ سابق دور کے 83 ترقیاتی منصوبوں کو ختم کر دیا گیا۔ سابق دور حکومت میں 220 ترقیاتی منصوبے شروع کیے گئے تھے۔ ترقیاتی کاموں کو بریک لگ چکی ہے۔ تفصیلات سے آگاہ کریں گے اختر مشاس۔ بتائے گا اختر۔ بالکل، اگر بات کی جائے میاں والی میں ترقیاتی منصوبہ جات کے حوالے سے تو موجودہ حکومت میاں والی کے ساتھ ستیلی ماں والا سلوک کرنے پہ اتر آئی۔ 220 پروجیکٹ پر کام شروع ہوا تھا، جن میں سے 62 منصوبہ جات جو ہیں ان کا کام مکمل ہو چکا ہے، اور اس کے علاوہ 80 منصوبہ جات جو ہیں ان پر ابھی ترقیاتی کام جاری ہیں۔ جبکہ اس میں سب سے اہمیت کی حامل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ 84 اسکیمیں جو ہیں ان کو ڈراپ کر دیا گیا ہے، جن میں ہیلتھ کی اسکیمیں ہیں، ایجوکیشن کی ہیں، سپورٹ کی ہیں، دیگر کی اسکیمیں ہیں جن کو ڈراپ کر دیا گیا ہے۔ بالکل ان اسکیموں کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اگر ہم بات کریں ان مین اسکیموں کی تو سب سے بڑی جو اسکیم ہے جو صحت کے شعبہ سے تعلق رکھتی ہے، میاں والی ڈی ایچ کیو ہاسپٹل کی بلڈنگ کی توسیع کی۔ 200 بیڈ کی بلڈنگ بن رہی تھی جس کا کافی حد تک کام مکمل ہو چکا ہے، اس پر تقریباً 30 کروڑ روپے خرچ ہو چکے ہیں۔ 3 ارب روپے کا یہ پروجیکٹ تھا۔ اس پروجیکٹ کو بالکل روک دیا گیا ہے اور اس کے لیے 1 روپیہ بھی جاری نہیں کیا گیا۔ اس حوالے سے میاں والی کے جو شہری ہیں وہ ان اسکیموں کو ڈراپ کرنے کے حوالے سے وہ سمجھ رہے ہیں کہ میاں والی کی عوام کے ساتھ یہ زیادتی ہے۔ سابقہ دور حکومت کے روکنا میاں والی کی عوام کے ساتھ۔ اختر مجاز بہت شکریہ۔ اب بات کریں گے اسموگ کی صورتحال کے حوالے سے۔ بڑھتی ہوئی فضائی آلودگی شہریوں کے لیے خطرہ۔ ملتان سمیت جنوبی پنجاب کے بیشتر شہروں میں اسموگ کے اثرات۔ بہاولپور کی فضا جنوبی پنجاب میں سب سے زیادہ آلودہ قرار۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 416 پوائنٹس ریکارڈ۔ ملتان کی فضا میں آلودگی کی شرح 263 پوائنٹس ریکارڈ کی گئی۔ شہری مختلف امراض کا شکار ہونے لگے۔ بڑھتی ہوئی فضائی آلودگی شہریوں کے لیے خطرہ بن گئی۔ ملتان سمیت جنوبی پنجاب کے بیشتر شہروں میں اسموگ کے اثرات۔ اس پر مزید تفصیلات جانیں گے، شکیل سلطان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی شکیل، بتائیے گا محکمہ ماحولیات کیا اقدامات کر رہی ہے؟ ماحولیات کے جانب سے اقدامات تو کیے جا رہے ہیں، ہر سال کیے جاتے ہیں۔ اس سال بھی ضلع انتظامیہ کی جانب سے، محکمہ ماحولیات کی جانب سے اور پولیس کی جانب سے کئی کارروائیاں بھی کی جا رہی ہیں ان عناصر کے خلاف جو مسلسل فضائی آلودگی بڑھنے کا باعث بن رہے ہیں، لیکن ان کارروائیوں کے کوئی خاص نتائج دیکھنے کو نہیں ملتے، کیونکہ ماحول جو ہے وہ دن بدن جو ہے وہ خراب ہوتا جا رہا ہے۔ جو جنوبی پنجاب کے تمام شہروں کی فضا ہے وہ گرد آلود ہوتی جا رہی ہے، اور شہری بھی اس سے کافی زیادہ
متاثر ہو رہے ہیں۔ اس وقت اگر ہم اعداد و شمار کی بات کریں کہ پورے جنوبی پنجاب میں تمام شہروں کے ایئر کوالٹی انڈیکس میں کیا رینکنگ رکھی گئی ہے اور کتنے پوائنٹس ریکارڈ کیے گئے ہیں آج ایئر کوالٹی انڈیکس کے حوالے سے، تو آج بہاولپور پہلے نمبر پر موجود ہے اور کل بھی بہاولپور پہلے نمبر پر موجود تھا، جبکہ اوورال پاکستان کے تمام شہروں کی بات کریں تو اکثر ملتان اور بہاولپور جو ہیں وہ پہلے، دوسرے اور تیسرے نمبر پر موجود رہتے ہیں۔ یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس قدر فضا جو ہے وہ آلودہ ہو چکی ہے۔ آج بہاولپور کے زیادہ سے زیادہ 416 پوائنٹس ریکارڈ کیے گئے ہیں ایئر کوالٹی انڈیکس میں، جبکہ ملتان 263، رحیم یار خان 223، جبکہ سرگودا کے 163 پوائنٹس ہیں۔ اسی طرح دیگر شہروں میں خانے وال 153 پوائنٹس ریکارڈ کیے گئے ہیں، لیا اور بہاول نگر میں 154، راجن پور میں 102 پوائنٹس ریکارڈ کیے گئے ایئر کوالٹی انڈیکس میں۔ دیگر شہروں میں مظفر گڑھ کے 151، جبکہ ڈی جی خان کے 136 پوائنٹس ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ جنوبی پنجاب کے وہ علاقے جہاں پہ درختوں کی تعداد بہت کم ہے وہاں اسموک زیادہ تر بڑھ رہی ہے، اور وہ علاقے جہاں پہ بھٹوں کی تعداد زیادہ ہے اور وہ بھٹے جن کو زگ زیگ ٹیکنالوجی پر نہیں شفٹ کیا گیا اور ان کا دھواں جو ہے وہ کافی مضر صحت ہے اور وہ بھی کافی خراب کر رہا ہے۔ ان دنوں اسموک اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کیونکہ درجہ حرارت کافی کم ہو جاتا ہے، پہلے سے ہی فضا کافی آلودہ ہوتی ہے، تو یہ ذرات جو ہیں وہ کیمیکل گیسز جو ہیں یہ سورج کی روشنی کے ساتھ مل کر اسموک کا باعث بنتی ہیں، اور یہ اسموک جو ہے وہ انسانی صحت کو جو ہے وہ مسلسل نقصان پہنچا رہی ہے، جس سے کئی قسم کی شہریوں کو بیماریوں کا سامنا ہے۔ خاص طور پر ان دنوں زیادہ تر لوگوں میں دیکھا جا رہا ہے نزلہ، بخار، کھانسی، یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور خاص پھیپھڑے سے بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، جبکہ ڈاکٹرز کی جانب سے بتایا جاتا ہے کہ بچے اور بوڑھے اسموک سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، جبکہ جوان عمر کے لوگ جو ہیں وہ اس سے کم متاثر ہوتے ہیں۔ متاثر تقریباً ہر عمر کا ہی شخص اس سے ہو رہا ہے، لیکن بچوں اور بوڑھوں میں قوت مدافعت جو ہے وہ زیادہ نہیں ہوتی، اس لیے وہ اسموک کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ جبکہ اگر بات کی جائے دیگر چیزوں کی جس میں ٹریفک کا دھواں بھی اس میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے، گاڑیوں کی اس طرح سے سروس نہیں کروائی گئی ہوتی، ان کا جو نکلنے والا دھواں ہے وہ ماحول کو خراب کر رہا ہے، جبکہ انڈسٹریل یونٹس سے نکلنے والا دھواں بھی کافی زیادہ ماحول کو خراب کر رہا ہے۔ ملتان میں جو انڈسٹریل اسٹیٹ ہے وہاں پہ جتنی بھی فیکٹریز ہیں وہ فیکٹریز جن کی چمنیاں بہت نیچے ہیں، زیادہ ان کی لمبائی ہے وہ اس قدر نہیں ہے، اونچائی اس قدر نہیں ہے، تو ان کا دھواں جو ہے وہ رہائشی علاقوں میں داخل ہوتا ہے اور شہریوں کو متاثر کر رہا ہے، جبکہ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے دیکھا جاتا ہے کہ وہ بھٹوں کے خلاف، انڈسٹریل یونٹس کے خلاف، ٹریفک جو دھواں پھیلا رہی ہے اس پر کاروائیاں تو کرتے ہیں، لیکن کوئی مستقل حل نہیں نکالا جا رہا کہ ہر سال جو اسموک بڑھ جاتی ہے، خاص طور پر ستمبر کے مہینے کے اینڈ میں بڑھتی ہے اور دسمبر کے آخر تک جاتی ہے، اور ان دنوں جب اسموک بہت زیادہ بڑھتی ہے تو بات یہاں تک آ جاتی ہے کہ تعلیمی ادارے بھی بند کرنے پڑتے ہیں، جس طرح پچھلے سال ہم نے دیکھا کہ تعلیمی اداروں کو مسلسل بند کیا جانے لگا۔ اب بھی صورتحال اگر ایسی ہو سکتی ہے اگر محکمہ ماحولیات نے ان تمام عناصر کے خلاف کارروائی نہ کی، کوئی مستقل حل نہ نکالا جو فضائی آلودگی پھیلانے کا باعث بن رہے ہیں اور اسموک بڑھنے کا باعث بن رہے ہیں۔ اسموک بڑھنے کا باعث بن رہی ہے۔ شکیل سلطان ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ اب بات کریں گے ملتان کے شہریوں کو پاسپورٹ کے اجراء میں شدید دشواری کا سامنا۔ 7 ماہ سے نارمل کیٹیگری کے پاسپورٹ کی ڈیلیوری بھی نہ ہو سکی، شہری پاسپورٹ کے لیے دفاتر کے چکر لگانے پر مجبور، عمرہ زائرین سمیت بیرون ممالک جانے والے دیگر شہری بھی خوار ہونے لگے۔ تفصیلات کیا ہیں جانیں گے مہر عمران سے۔ عمران بتائیے گا۔ بالکل بات کریں گے ملتان سمیت جنوبی پنجاب بھر میں جو پاسپورٹ کا ایک ایشو چل رہا ہے، جس میں جو فروری کے بعد اب تک جو نارمل پاسپورٹ ہیں وہ نہیں آئے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ جو سائلین ہیں، جو شہری ہیں، جو لوگ ہیں وہ پریشان ہیں۔ ہائی کورٹ کی بات کریں تو یہاں پہ بھی آخری جو پاسپورٹ ریسیو ہوئے تھے نارمل کیٹیگری کے، جس کا 1 مہینے کے اندر پاسپورٹ وصولی کا جو ہے وہ ان کو کہا گیا تھا، ڈیلیوری کا کہا گیا تھا، لیکن اب تک اکتوبر گزر چکی ہوئی ہے، اتنے مہینوں سے جو ہے وہ سینکڑوں پاسپورٹ نہیں آ رہے۔ وکلا بھی پریشان ہیں جنہوں نے عمرے پہ جانا تھا، اس کے علاوہ مختلف ممالک میں وزٹ کے لیے اور جاب کے لیے جانے والے بھی کافی پریشان ہیں۔ وکلا صاحبان ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر قانوندان ہیں۔ ایوب ازدار صاحب کیا کہیں گے پاسپورٹ کی اہمیت کے حوالے سے اور نہ ملنے سے شہری کتنے پریشان؟ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ دنیا میں کہیں وزٹ کرنا ہے، مسلمان عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے یا زواری کے لیے پاسپورٹ بنواتا ہے، یا طالب علم باہر کی یونیورسٹیوں میں ایڈمیشن جب ہو جاتا ہے تو پاسپورٹ اپلائی کرتے ہیں کہ ویزا لگوا کے ہم چلے جائیں گے۔ ہزاروں طالب علم باہر کی یونیورسٹیوں میں ایڈمیشن ہونے کے باوجود وہ بیچارے اپنے داخلے سے محروم ہیں۔ ہزاروں لوگ
जिन्होंने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया जनवरी 2024 से आज तक नॉर्मल अप्लाई करने वाले लोगों को पासपोर्ट नहीं मिल सके। इसी तरीके से ज़वारी पर जाने वाले लोगों को उनके साथ के वफद काफिले होकर आ गए, लेकिन उन बेचारों के पासपोर्ट अभी तक नहीं आए। ये जुल्म और ज़्यादती पासपोर्ट महकमे के अफसरान जो हेडक्वार्टर में बैठते हैं, ये उनकी मिली भगत के साथ ये सारा मामला हो रहा है। हालांकि पहले 3,000 रुपये फीस होती थी नॉर्मल की, और 1 महीने का वो कहते थे 15 दिन में पासपोर्ट आ जाता था। फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए। जो बाख्तियार इस वक्त तमाम बड़े बड़े हमारे पाकिस्तान, हमारी माँ है, मदरलैंड, इसके बड़े जो हैं उनसे मुतालबा है मेहरबानी फरमाकर पूरे पाकिस्तान को सहूलत में ले आएं। इस वक्त आप देखें कि ज़्यादातर इन्हिसार किया जा रहा है कि जितने भी ओवरसीज़ लोग हैं उनकी कितने मसाइल हैं, किन इंतहा हो रही है, वो बेचारे आने जाने की सहूलियात से मजबूर हो चुके, परेशान हैं। बिल्कुल मुतालबा किया जा रहा है अल्लाह हुकाम से कि फौरी तौर पर जो पासपोर्ट रुके हुए हैं लोगों के 1-1 साल से मसूल नहीं, और जो नॉर्मल कैटेगरी के ख़ास तौर पर बात करें तो उसके साथ फास्ट ट्रैक वाले भी 2 दिन का कह के 10-10 दिन गुजर जाते हैं। यहाँ पे मुतालबा किया जा रहा है कि फौरी तौर पर पूरे पाकिस्तान में जो का एक हज़ारों जो रुके हुए पासपोर्ट हैं वो फौरी जारी। आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया इमरान। खानेवाल में ट्रैक्टर ट्रॉली मालिकान का डीसी दफ्तर के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन कहते हैं कि रेत की फी ट्रॉली पर 6,300 रुपए टैक्स लगा दिया गया और रेत की ट्रॉली 12,000 में फरोख्त करने पर मजबूर हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद नदीम मुगल से। रेत का कारोबार करने वाले ट्रैक्टर ट्राली मालकान ने डीसी ऑफिस के सामने एहतजाजी धरना दिया। उनका कहना है कि बेजा टैक्स की वजह से उनका कारोबार मुतासर हो रहा है और बेजा टैक्स की वजह से उनका मुआशी कत्ल किया जा रहा है। तो मजीद पर हम बात करेंगे, हमारे साथ ट्रैक्टर ट्राली एसोसिएशन के जो सदर हैं वो मौजूद हैं, उनसे जानेंगे क्या कहेंगे, क्या मुतालबात हैं आपके जो एहतजाज कर रहे हैं। हमारे अवान अबाला से हमारी रिक्वेस्ट है कि ये टैक्स जो है 3,000 रुपये पहले ले रहे थे, जो नाजायज़ ले रहे थे, अब 1,300 रुपया हमसे टैक्स वसूली कर रहे हैं, जो जालमाना निज़ाम इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी पुरजोर अपील है कि हमारा टैक्स माफ़ किया जाए, पूरे शहर की आवाम को रिलीफ दिया जाए। जो टैक्स हम 7500 की ट्राली बेच रहे थे, हमें मजबूर कर रहे हैं कि 12,000 रुपये की ट्राली वसूल। 12,000 की ट्राली हो जाएगी, तो कैसे ये सिलसिला चले? देखिए जी, ऐसे तो गरीब आदमी का चूल्हा पहले मुश्किल चल रहा है, तो जो ये इन्होंने जालमाना टैक्स लगाया है शेड्यूल के मुताबिक, ये पहले भी टैक्स ज्यादा ले रहे हैं 3,000 रुपया, तो अब इन्होंने 6300 रुपये कर दिया है। देखें 3,000 से डायरेक्ट 6300 रुपये ले गए हैं, तो गरीब आदमी ना तो मकान बना सकेगा ना अपना चूल्हा चला सकेगा। जहाँ इनका मुआशी कत्ल होगा वहीं तामीराती काम भी बुरी तरह मुतासर होगा। लिहाजा हुकूमत पंजाब से मुतालबा कर रहे हैं कि रेत जाने वाले टैक्स को फौरी तौर पर खत्म। शुक्रिया नदीम मुगल अपडेट कर रहे थे। अब बात करेंगे, डेंगू मच्छर ने बहावलपुर के शहरियों का पीछा ना छोड़ा। मजीद 3 शहरों में डेंगू वायरस की तस्दीक। नए तस्दीक शुदा डेंगू मरीज ट्रैवल हिस्ट्री केस डिक्लेयर। 2 केस इस्लामाबाद और रावलपिंडी पर जबकि 1 कराची से शामिल। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के 16 मुश्तबा शहरी रिपोर्ट हुए। बहावलपुर के अस्पतालों में ज़ेर इलाज डेंगू मरीजों की तादाद 8 होगी। डेंगू की सूरत हाल के हवाले से मजीद जानेंगे। ताहिर जो ये हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर बताइएगा, डेंगू पर काबू पाने में क्यों नाकाम नजर आ रही है इंतजामिया? देखिए जी, इंतजामिया का तो दावा यही है कि बहावलपुर में डेंगू की सूरत हाल कंट्रोल में है, और अगर देखा जाए अब जाहिर तो हमें कहीं पे सूरत हाल कंट्रोल में नजर नहीं आती। अब तक 12 मकामी केस जो है वो सामने आ चुके हैं, और अभी भी बहावलपुर से 2 मकामी केस जो है वो मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं। और हर जगह से जहाँ पे भी सर्वेलेंस की जा रही है, बहावलपुर का किसी चाहे शहरी इलाका हो चाहे देहाती इलाका हो, डेंगू का लार्वा जो है वो बरामद किया जा रहा है। इस वाले से बहावलपुर इंतजामिया का दावा तो है कि सूरत हाल कंट्रोल में है, लेकिन बज़ाहिर अब बहावलपुर में जिस तरह की सूरत हाल है वो सबके सामने कि रोजाना की बुनियाद पर केस होते नजर आ रहे हैं। अगर हम पिछले 24 घंटों की बात करते चले तो 3 केस रिपोर्ट हुए, लेकिन अच्छी बात यह है कि इन तीनों केसों को ट्रैवल हिस्ट्री क्लियर किया गया, जिसमें से 2 केस कराची, 1 केस कराची और 2 केस इस्लामाबाद और रावलपिंडी के हैं। इस वक्त बहावलपुर के मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज डेंगू मरीजों की तादाद 8 हो गई है। कल हमने देखा कि सूरत हाल काफी बेहतर हुई थी, लेकिन आज फिर गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3 मजीद मरीज जो है उनको आइसोलेशन वार्ड में मुंतकिल किया गया है। 24 घंटों के दौरान मुश्तबा मरीजों की बात करते हैं तो वो भी 16 रिपोर्ट हुए हैं। बहावल विक्टोरिया अस्पताल 11 और डेंगू की सूरत हाल पर ताहिर जो हमें अपडेट करे थे, बहुत शुक्रिया।
पंजाब हुकूमत ने 3 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए। कैप्टन ताहिर जफर स्पेशल सेक्रेटरी जंगलात तैनात, कैसर अब्बास को डिप्टी सेक्रेटरी जंगलात तैनात कर दिया गया। मुंतजिर हैदर अब्बास को डिप्टी सेक्रेटरी जंगलात तैनात कर दिया गया। महकमे SNGAB ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब हुकूमत ने 3 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए। कैप्टन ताहिर जफर स्पेशल सेक्रेटरी जंगलात तैनात, कैसर अब्बास को डिप्टी सेक्रेटरी जंगलात तैनात कर दिया गया। पंजाब रूरल सपोर्ट प्रोग्राम में ज़ेर तालीम तलबा की फीस में इजाफा। फीस में इजाफे की हुकूमत पंजाब ने मंजूरी दे दी। डायरेक्टर PRSP ने माहाना फीस में इजाफे का PEF लाइसेंस दारान को मुरासला जारी कर दिया है। आपको बता रहे हैं पंजाब रूरल सपोर्ट प्रोग्राम में ज़ेर तालीम तलबा की फीस में इजाफे की हुकूमत पंजाब ने मंजूरी दे दी है। डायरेक्टर PRSP ने माहाना फीस में इजाफे का PEF लाइसेंस दारान को मरासला जारी कर दिया। मजीद तफसीला जानने के आमिर भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। जी आमिर भट्टी, बताइएगा, फीस में इजाफे की पंजाब हुकूमत ने मंजूरी दे दी है। रहीम यार खान में हुकूमत पंजाब और पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के बाहमी तावन से पंजाब रूरल सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो स्कूल्स हैं वहाँ की जो इंतज़ामिया जो लाइसेंस दरान हैं उनकी जो बच्चों को दी जाने वाली फ़ीस है उसमें इजाफा कर दिया गया है। पहले फ़ी बच्चे की जो फ़ीस थी जो PRSP या फिर PEF के जो लाइसेंस दरान थे उनको जो थी वो 850 रुपये फ़ी बच्चे के हिसाब से माहाना जो है वो अदा की जाती थी। लेकिन अब उसमें जो है वो महंगाई के हिसाब से जो है वो हुकूमत पंजाब की जानिब से जो है वो बाकायदा तौर पे इसकी जो मंजूरी दे दी गई है और फ़ी बच्चे की जो माहाना फ़ीस है वो 850 रुपये से बढ़ाकर जो है वो अब मजमूई तौर पे जो है वो 1500 रुपये कर दी गई है। इसमें अगर हम डिटेल में जाएं तो 850 रुपये जो 1500 रुपये मुकम्मल फ़ीस है उसमें से जो है वो इसमें बच्चे की ट्यूशन फ़ीस शामिल है, जबकि इंतज़ामी यूटिलिटी बिल्स मरम्मत और जो ऑपरेशनल जो अखराजात होते हैं उसमें भी जो है वो 350 रुपये मजीद जो है वो शामिल कर दिए गए हैं। ऑपरेशनल जो ये अखराजात होते हैं और इसके साथ साथ जो ट्यूशन फीस है मजमूई तौर पे 1200 रुपये बच्चे की फीस है। लेकिन इसमें मजीद कुछ चीज़ें जो है वो मशरूत कर दी गई हैं कि अगर तालीमी इदारों में जो है वो दीगर जो अदबी एक्टिविटीज़ की जाएंगी, खेलों की जो है वो मैदान सजाएंगे या फिर उसके हवाले से जो है वो कंप्यूटर लैब्स या फिर IT के मजीद जो है वो प्रोजेक्ट शामिल किए जाएंगे तो उसमें मजीद जो है वो 300 रुपये जो है वो शामिल कर दिया गया है। 1500 रुपये मजमूई तौर पर फीस है। इस हवाले से जो है वो PRSP जो डायरेक्टर हैं उन्होंने जो है वो तमाम जो लाइसेंस दरान है उनको जो है वो हिदायत का जो मरासला है वो जारी कर दिया। उसमें मजीद जो PRSP के जो लाइसेंस दरान है उनको मजीद इंस्ट्रक्शन जारी कर दी गई है कि अब तालीमी इदारों की मुकम्मल जो मियार तालीम या फिर इंतजामी अमूर की जो जिम्मेदारी है वो आपके ऊपर जो है और इसके साथ साथ ये भी चीज़ें देखी जाएँ कि बच्चों को जो है वो पढ़ाने वाले जो असातिज़ा होंगे वो आला तालीम याफ्ता हों और बेहतरीन जो है वो तजर्बा रखते हों। इसके साथ साथ ये भी कोशिश की जाए कि जो PRSP या फिर PEF के तहत जो स्कूल्स हैं उनमें जो है वो वाशरूम, पीने का साफ पानी, राइटिंग के हवाले से जो बोर्ड होते हैं और दीगर तमाम तर जो सहूलियात हैं उनको भी जो है वो मुकम्मल किया जाए। फीस में इजाफे का मकसद ये है कि जो PRSP लाइसेंस दरान है उनके जो फिनेंशियली इशूज़ थे वो भी सॉल्व किए जाएँ और इसके साथ साथ ना सिर्फ जो स्कूलों का जो मियार जो तालीम है वो तभी मुमकिन होगा जब सहूलियात में इजाफा होगा, इंतजामी ढांचे, इंतजामी अमूर जो है वो मजबूत होंगे, तभी जो है वो मुस्तकबिल के मेहमान जो है वो बेहतरीन सहूलियात में जो है वो ज़ेवर तालीम से आरास्ता हो सकेंगे। जी आमिर भट्टी हमें आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फीस 850 रुपये माहाना से बढ़ाकर 1500 रुपये कर दी गई है। यूटिलिटी बिल्स 350, खेलों की सहूलियात 100 रुपये, साइंस लैब 100 जबकि 100 रुपये IT लैब्स के शामिल हैं। स्कूल के तदरीसी और इंतजामी उमूर लाइसेंस दारान की जिम्मेदारी में होंगे। मुरासले के मुताबिक म्यार तालीम की बेहतरी के लिए बेहतरीन असातिज़ा तैनात करें। स्कूलों में तमाम सहूलियात बशमूल वॉशरूम, साफ पानी, राइटिंग बोर्ड मुकम्मल करें। PRSP लाइसेंस दारान रिपोर्ट डायरेक्टर PRSP को भिजवाएं। अब बात करेंगे मुल्तान में नफरत अंगेज बातें करना हकीम शहजाद को महंगा पड़ गया है। FIA मुल्तान की कार्रवाई, दानिया शाह का शोहर हकीम शहजाद गिरफ्तार। हकीम शहजाद ने वीडियोस में गुमराह कुन अफवाहें फैलाई थीं। आपको बता रहे हैं नफरत अंगेज बातें करना हकीम शहजाद को महंगा पड़ गया। FIA मुल्तान की कार्रवाई, दानिया शाह को शौहर हकीम शहजाद गिरफ्तार कर लिया गया। हकीम शहजाद ने वीडियोस में गुमराह कुन अफवाहें फैलाई थी। FIA मुल्तान की कार्रवाई, दानिया शाह का शौहर हकीम शहजाद गिरफ्तार कर लिया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ नफरत आमेज वीडियोस अपलोड की। FIA ने मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई का आगाज भी कर दिया है। मुल्तान से आपको अपडेट करें, नफरत अंगेज बातें करना हकीम शहजाद को महंगा पड़ गया। FIA मुल्तान की कार्रवाई,
दानिया शाह का शोहर हकीम शहजाद गिरफ्तार कर लिया गया। हकीम शहजाद ने वीडियोस में गुमराह कुन अफवाहें फैलाई थीं। कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ नफरत आमेज वीडियोस अपलोड की गई थीं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री का मामला। बहावलपुर बार के सदर ने चीफ जस्टिस की तकर्री को खुशाइन करार दे दिया। आईनी बेंच के कयाम से साल से ज़ेरे इल्तवा केसेस निपटाए जा सकेंगे। तफसीलात से आगाह करेंगे महमूद सही। बताइएगा महमूद। जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से जो तकर्री की बातें हैं उसमें कितनी खुशाइंद है हुकूमत की जानिब से तकर्री जो की गई है, इसके हवाले से जानते हैं। हाई कोर्ट बार के हमारे साथ प्रेसिडेंट मौजूद हैं जनाब सरदार अब्दुल बासित साहब। सर, क्या देखते हैं आप इस हवाले से? उम्मीद की जाती है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ फर्दर हमारे मुल्क की बेहतरी होगी इसमें, और बार एसोसिएशन याजा अफरीदी साहब, मिस्टर जस्टिस याजा अफरीदी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के लिए जो अपॉइंटमेंट के लिए सिफारिश की गई है, मैं उसको खुशाइन करार देता हूँ। वकला की बेहतरी के लिए जो एक 5-8 का फैसले की जो बातें हो रही थी वो मेरा ख्याल है अब ख़त्म हो जाएंगी। पार्टीबाजी की सियासत भी ख़त्म हो जाएगी और इसमें मुल्क की बेहतरी के लिए इंशाअल्लाह कभी उम्मीद है कि बेहतरी होगी। और ख़ास तौर पर उसको बेयर करते थे एप्लीकेंट्स या साइल, साल केसेस चलते थे, फैसले नहीं आते थे। सदर हाई कोर्ट बार सरदार अब्दुल बासित अप्रिशिएट कर रहे हैं आईनी बेंच बनने को और खुशाइन करार दे रहे हैं जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की चीफ जस्टिस। महमूद ज़हीर आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया। पंजाब पुलिस के एहलकारों के लिए अच्छी खबर है। सब इंस्पेक्टर ASI की भर्तियां PPS के जरिए करने का फैसला किया गया है। आपको बता रहे हैं ASI की भर्तियां PPS के जरिए करने का फैसला। पंजाब पुलिस में सर्विस कोटे की भर्तियां PPSC के जरिए होंगी। सूबे भर में ASI, हेड कांस्टेबल की भर्तियों की तादाद तलब। IG पंजाब की जानिब से मुतल्लिका अफसरान से तफसीलात तलब कर ली गई। मुतल्लिका अफसरान से तफसीलात तलब कर ली गई हैं। पंजाब पुलिस के एहलकारों के लिए अच्छी खबर आ गई। सब इंस्पेक्टर ASI की भर्तियां PPS के जरिए करने का फैसला। पंजाब पुलिस में सर्विस कोटा की भर्तियां PPSC के जरिए होंगी। मुरासले में लिखा गया कि सूबे भर में ASI, हेड कांस्टेबल की भर्तियों की तादाद तलब कर ली गई। आबिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद बताइए। बिल्कुल, पंजाब पुलिस के एहलकारों के लिए अच्छी खबर सामने आई है और बताया जा रहा है कि पंजाब पुलिस में सर्विस कोटा की बुनियाद पर सब इंस्पेक्टर और ASI की नई सीटों को PPSC के जरिए पुर करने का फैसला कर लिया गया है। जी पंजाब की जानिब से सूबा भर में ASI, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल की तादाद तलब कर ली गई है और मुरासले में कहा गया कि सब इंस्पेक्टर के लिए उम्र की हद 23 से 35 साल जबकि 5 साल की उम्र में राय दी जाएगी। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए उम्र की हद 21 से 35 साल रखेगी और इस तरह ASI, हेड कांस्टेबल किसी भी यूनिट में 3-3 साल सर्विस जो है वो लाजमी करार दी गई है। मुरासले में कहा गया है कि तमाम नाम, बल्दियत, कौमी शनाख्ती कार्ड, डोमिसाइल, बेल्ट नंबर, तलीमी काबिलियत, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और ASI की तफसीलात जो है वो परफॉर्मे में लेकर भिजवाए जाएं। और मुरासले में ये भी कहा गया है कि मुतल्लिका CCPO और RPO के दस्तखत से तमाम मालूमात IG ऑफिस 5 रोज के अंदर जमा करवाने का हुक्म दिया गया है। ठीक है आबिद चौधरी, बहुत शुक्रिया। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में गंदम की काश्त नवंबर में शुरू होगी। पंजाब सीड कॉरपोरेशन ने गंदम के बीज की कीमत 7,300 मुकर्रर कर दी। मजीद जानते हैं जुनेद अनवर से। बताइए जुनेद। जी बिल्कुल, नवंबर के अंदर जनूबी पंजाब भर के अंदर गंदम की काश्त का आगाज़ किया जाएगा। वहीं पर दूसरी जानिब किसान जो है पिछले साल गंदम का मुनासिब रेट न मिलने पर हुकूमत से जो है वो खफा भी नज़र आते हैं और हुकूमत की जानिब से इमदादी कीमत के बावजूद जो है वो किसान से उस कीमत पर जो है वो गंदम नहीं खरीदी गई। जबकि पंजाब सीड कॉरपोरेशन की जानिब से गंदम के बीज की कीमत जो है वो 7300 रुपये तक जो है वो मुकर्रर की गई है। इस वक्त डिवीजनल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून साद कांजू हमारे मौजूद से बात करेंगे। लास्ट ईयर जो रेट तय हुआ था, जो गवर्नमेंट्स ने तय किया था, उस पर वफाकी हुकूमत ने तो गंदम खरीदी थी, जहाँ पास्को सेंटर्स थे वहाँ खरीदी गई थी। पंजाब गवर्नमेंट ने जो है वो नहीं खरीदी थी कि वो कहते हैं कि हमारे पास स्टॉक मौजूद है और उस वक्त सरमाया की कमी थी, मुल्क में बाकी सूबे में मुख्तलिफ जो प्रॉब्लम्स थी। लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं है कि जो मार्केट का रेट अगर 25-2600 जो गंदम आज बिक रही है, इस पे बिकना भी किसान के लिए इंतहाई ख़तरनाक और जुल्म के मुतरादिफ है। तो अगर गवर्नमेंट, हम तो अपनी गवर्नमेंट को ये सजेशन ज़रूर देंगे कि अगर वो ये समझते हैं कि अगर आबादी के तनासुब के लिहाज से शहरों के अंदर रोटी की कीमत ज़्यादा है और इसको कम करना चाहते हैं, तो कम से कम इतनी जो है वो कीमत तय कर दी जाए गंदम की, जो किसान के लिए भी काबिल बर्दाश्त हो जाए और शहरियों के लिए लेना और उसको रोटी को इस्तेमाल करना उनके लिए भी काबिल इस्तेमाल रहे। लेकिन सीड के लिए जो गंदम तैयार होती है, जिसकी वेस्टेज भी होती है, जिसकी सफाई सुथराई भी
होती है, उसको संभाल कर रखना भी होता है, हल्की बुल्की उसके ऊपर कोई ना कोई मेडिसिन भी इस्तेमाल होती है उसको प्रिजर्व करने के लिए, बारदाना भी होता है। इसलिए उनकी कीमत में पिछले सालों की निस्बत बहुत मामूली इजाफा हुआ है, लेकिन ज़्यादा इसलिए लग रहा है कि वो गंदम की कीमत बहुत कम हो चुकी है। जी बिल्कुल, साथ खुर्शीद कांजू का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि गंदम की जो फिक्स कीमत जो है वो मुकर्रर की जाए, ताकि काश्तकार जो है वो बआसानी जो है वो गंदम को काश्त कर सके, जबकि जिस हालात में इस वक्त मार्केट में गंदम फरोख्त हो रही है उसमें काश्तकार के साथ सरासर जुल्म है और उसको गंदम का वो रेट जो है वो उसके लिए जुनैद, बहुत शुक्रिया। डेरा गाजी खान में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद की जानिब से खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। मोहम्मद उस्मान खालिद का कहना है कि शहरी खुली कचहरी में अपनी शिकायत लेकर आ सकते हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक से। बिल्कुल, डेरा गाजी खान इस वक्त हम डीसी ऑफिस मौजूद हैं और मेरे साथ डिप्टी कमिश्नर उस्मान खालिद मौजूद हैं, जिन्होंने आज खुली कचहरी लगाकर यहाँ पर आने वाले साइलिन के मसाइल को सुना, उनकी शिकायत को सुना और उनको दूर करने के हवाले से हिदायत जारी की हैं। तो इनसे हम मज़ीद जानते हैं कि ये इस हवाले से क्या कहते हैं। गवर्नमेंट के डायरेक्शन पे, चीफ मिनिस्टर साहबा की डायरेक्शंस पे आम पब्लिक के लिए, साइलिन के लिए सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक का जो टाइम है वो वक़फ़ किया गया है। इसको हमने आसान रसाई का एक नाम दिया है। इसमें हम कोई और हम जितनी भी असाइनमेंट्स हैं वो उसमें कोई नहीं रखते, सिर्फ हम लोगों को सुनते हैं, उनके मसाइल को सुनते हैं। हमारे पास पूरे ज़िले में से लोग आते हैं, जिसमें से जो भले उनका किसी भी महकमे से मुतल्लिका उनका मसला हो, वो सेहत हो, तालीम हो, सीवरेज हो, सफाई हो, जो भी उनके मसाइल होते हैं हमारे पास उनके हल के लिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जिसको हम CMS बोलते हैं, कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम। उनकी कंप्लेंट्स वहाँ पे रजिस्टर होती हैं और डायरेक्शंस पास हो जाती हैं। 15 दिनों के अंदर अंदर हम उनकी रिपोर्ट तलब करते हैं। कंसर्न जो भी हमारे डिपार्टमेंट्स होते हैं उन मसाइल को हल करने के बाद हमारे पास रिपोर्ट देते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर ज़िला भर से साइलिन आते हैं अपने मसाइल लेकर। यहाँ पर 9:30 बजे ये टाइम शुरू हो जाता है और 11:30 बजे तक उन खुली कचहरी लगाकर जो उनके मसाइल हैं वो सुने जाते हैं। दूसरी जानिब DC साहब का ये कहना है कि जो कुछ दूर दराज इलाकों से, जैसे कि ट्राइबल एरिया सखी सरवर साइड से कुछ लोग आते हैं, तो उनके लिए जो AC साहिबान हैं उनको भी हिदायत जारी कर दी गई हैं कि अगर कुछ इस तरह के मसाइल हों तो वो वहीं पर खुली कचहरी लगाकर हुकूमत की हिदायत के मुताबिक उनके मसाइल को सुन लें और उनकी जो सोल्यूशंस है उसके हवाले से हिदायत जारी करें। जी ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। लिया में थल जीप रैली मेले के लिए इंतजामात हतमी मराहिल में दाखिल। डिप्टी कमिश्नर अमीरा बेदार की ज़ेर सदारत अहम इजलास का इनेकाद। इजलास में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान समेत समाजी शख्सियात की शिरकत। किन शख्सियात ने शिरकत की, जान लेते हैं जाहिद सरफराज से। बताइएगा जाहिद। हाल ये रैली और थाल मेले के इंतजाम के हवाले से बात की तो इंतजाम जोर शोर के साथ जारी हैं। डिप्टी कमिश्नर साहबा अमीरा बेदार साहब आज एक मीटिंग का इनेकाद किया गया जिसके अंदर तमाम महकमों के अफसरान ने शिरकत की और इस मेगा इवेंट को कामयाब बनाने की वजह से भरपूर इकदाम और अहकाम जारी किए गए। डिप्टी कमिश्नर साहब मौजूद से बात मैंने सब आज अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी दफ़ा हमारी मीटिंग हो चुकी है। कल भी ADCR ने टीम्स तश्कील दे दी हैं। हम ज़ोर शोर से इसके ऊपर अपने इकदाम जारी रखे हुए हैं। डे नाइट जो है वो ट्रैक के ऊपर काम हो रहा है। वहाँ पे हमारे CNW जो रोड्स वाले हैं वो भी काम कर रहे हैं, MC भी काम कर रही है, ज़िला कौंसिल भी वहाँ पे मौजूद है। इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा पिछले सालों से भी ज़्यादा हम पर उम्मीद है कि और अच्छे इंतजाम किए जाएंगे। आवाम की तफरीह के लिए बहुत अच्छे इकदाम किए जा रहे हैं और सफारी के हवाले से भी हम कुछ उसके अंदर इकदाम करेंगे और भी जो है मेला जो है जात जो है वो भी कायम करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा इकदाम हमारे पिछले सालों से भी बहुत अच्छे होंगे। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर साहबा की बात सुनी, उनका यही बताना है कि इस बार थाल जीप रैली को पहले से ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा इंतजाम बनाया जा रहा है ताकि शहरी जो है उनको भरपूर सैर तफरीह। बहुत शुक्रिया जाहिद सरफराज।